बॉन्ड बनवा लो और उसके बाद मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। क्या हम केवल और बॉन्ड किस चीज का बॉन्ड? तुमको उस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना होगा। तुम अपने भाई से पूछना, अपने माँ बाप के बारे में ऐसा कोर्ट में लिख के देगा तो हम भी देंगे। तुम उदाहरण के लिए लाओगे सारे माँ बाप ये सोच के तुम्हें शादी करना चाहिए था ना, जब ये करना था वो। This is a case from Bihar. The only mistake that this man has committed is that he will not abandon his family at the demand of his wife. That's why she has left him and she's gone to her parents, and now she's filed all kind of cases on him, accusing them of dowry, domestic violence, maintenance, and it is not a man versus woman issue, it is a human issue. गलत केस मजबूरी है सिस्टम की, अगर सिस्टम सीधे तरीके से नहीं दिला पाता तो लोग गलत तरीके का यूज करते हैं। Section 69 of the Bharatiya Nyaya Samhita. It only punishes male if he get into a physical relationship with a female on the false promise of marriage. 10 साल की जेल है उसके ऊपर। 2023 में हम लोगों ने एक रिसर्च रिलीज करी। हम लोगों ने लगभग 850 केसेस डॉक्यूमेंट करे, जिसमें से 350 केसेस ऐसे थे जहां पे महिला ने अपने लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड को मर्डर कर दिया। Statistics of male suicides is 1,19,000 versus 45,000 of women. अपनी लाइफ को खत्म करना सबसे गलत डिसीजन है, सबसे कमजोर डिसीजन है। हस्बैंड के जो अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, क्या सभी सुसाइड कर रहे हैं? क्या कोई भी नहीं कर रहा? तो मैं तो यही मानूंगा कि जो भी सुसाइड करे, चाहे हस्बैंड है या वो औरत है, वो कमजोर है। आज भी औरतों की जो लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है। निकलो, इस जो पेरीमीटर है ना दिल्ली के सेंटर में लगा के, इसी के 20 किलोमीटर की रेंज में सब कुछ है, उससे ऊपर दूर जाना शुरू कर दोगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या सच में आज भी हमें कानून को चेंज करना है, नहीं। Hi, my name is Divya Jain. I'm the founder of Safe Educate, and because she can, I've been working in the skilling space for the past 15 years. ये केस है अतुल सुभाष जी का that has grabbed the attention of the entire country. पूरी country divided है and काफ़ी debate हुआ है. Some people are pro the steps that he took of ending his life. काफ़ी लोग काफ़ी negative हैं. और एक बहुत ज़्यादा अटेंशन इसने हाईलाइट किया है ऑन मेंस राइट्स कि लीगल सिस्टम में आर मेन बीइंग एक्सप्लॉइटेड, हाउ, व्हाट, वेयर, what changes need to be created, is it okay, is it not. We call for people from different sides to tell us कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ये सिस्टम की गलती है, ये लॉज की गलती है. There were certain people who supported the wife. They were fine with the actions she took. There were a lot of people who were in favor of Atul and felt that he had no other option. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जहाँ पे वी रियली गॉट इनटू द इनसाइट्स ऑफ व्हाट इज़ द लीगल सिस्टम, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, ये क्यों मिसयूज़ होता है, क्या लॉयर्स ही फोर्स कर देते हैं वुमेन की फैमिलीज़ को मिसयूज़ करने के लिए, फॉल्स केसेस बनाने के लिए, एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ चेंजेस वी नीड टू क्रिएट इन आवर सोसाइटी. Can I give you a solution? I don't think so, but I will definitely guarantee you कि आपका दिमाग खुलेगा and आपको एक completely new perspective मिलेगा on men, men's rights, and how we can create a more equal and happy society. The episode starts in 3, 2, 1. And you know, as someone who's always been talking about increasing the role of women, empowering women, having more women in the workplace, skilling women, I think it was a very interesting perspective for me to see and understand कि हाँ हम, while we need to women to come up and become more independent, at the other end एक ये हमारा एक और segment हमने create कर दिया है जहाँ पे किसी sectors में या you know there are certain men who are being impacted and affected. You know, very small statistics is that the suicide rate of men is 3 times that of women. And whether that's because of legal pressure, society pressure, there's obviously एक बहुत unhealthy environment हमने create कर दिया है. And I would love to talk to you about it कि society में जब हम देखते हैं कि नहीं अभी भी you know men are in control, women are still trying to find their place. Why are we now saying कि you know men's rights is something that we need to be looking at? See Divya, there is no doubt कि अभी भी हमारे वर्क प्लेसेस में या फिर सोसाइटी में बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट और हैविंग वुमेन यू नो इन ऑन एब्सोल्युटली इक्वल पेडेस्टल टू मेन. बट हमारे जो लीगल स्पेक्ट्रम है या जो लीगल स्पेसेस हैं
वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लॉज बना दिए गए हैं जो कि ऑब्वियसली बनाए तो बड़े अच्छे इंटेंट से थे कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करना है, महिलाओं को जस्टिस देना है। बट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे महिलाओं ने उस इंटेंट का मिसयूज किया है, मुझसे लॉज का भी मिसयूज किया है ऑब्वियसली। बट वो जो एक सोसाइटी का एम्पैथी होता है, एक प्रोटेक्टिव जो पर्सपेक्टिव होता है, उसका भी आई वुड से मिसयूज किया है। तो आई थिंक मेंस राइट्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हुआ हो या उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया जाए कि वेदर वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट और नॉट। Just like women's rights are there, men's rights are there. It is nothing of an alien concept. फीमेल्स के लिए मेंटेनेंस के लॉ हैं हमारे पास, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, there's an extensive law which is applicable on every sort of female, Christian, Hindu, Muslim, Sikh, anybody and everybody. Men right are not there. बहुत सारे लोग बोलते हैं what is the need of men's rights? Do men even need rights? Right. You know what are women's rights? Women's rights is that a woman should have um, every opportunity. She should have a dignified life. Nobody should be oppressing her or dominating her. She should have all the opportunities or live life the way she wants, which is devoid of violence or oppression or domination and things like that. What are men's rights? Exactly the same thing. Allowing a man to do what he wants to do, to pursue a career or whatever he wants to do, to not be burdened with something which is which does not give him a dignified life, and be not subjected to violence or domination, or if that person is subjected to or a man is subjected to, then have recourses for it. So all that we are saying when we talk about men's rights is that if a man is subjected to violence, if a man is subjected to discrimination, human rights of a man are violated, then he should also have recourses, nothing else. And it is not a man versus woman issue, it is Right. a human issue, Right. as simple as that. Right. Absolutely. So, a lot of people think that men's rights is anti women. It is not. It is only talking about a dignified life for a man and having a recourse if his rights are violated. That's about it. So, just like there have been men who have misused patriarchy, who have taken advantage of societal or the power that they Right. have and used it to dominate women, oppress women. There are certain women who are doing it opposite way. They're Right. using their legal powers to um, be violent towards men, to be absolutely abusive towards men, and unfortunately get away with it because there are no laws that a man can use against a woman uh, when it comes to gender-based violence. So that's why we are talking about it. So there was this audio that you were making me listen to of a case जो आपके साथ आया हुआ था. I'd love for you to share it and tell us कि इसमें क्या हुआ था, क्यों हुआ था. Sure. और उसके बाद मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं क्या हम केवल और गॉड की चीज का तुमको उस तक से कोई इंसान नहीं रखना तुम अपने भाई से पूछना अपने माँ बाप के बारे में ऐसा कुछ में लिख के देगा तो आपकी एकदम मेरा भाई को मैं तुम्हारी माँ को छोड़ेगा अगर बात सुन मेरी माँ को छोड़ेगा मेरा भाई का पीछे रहेगा ना समझे अभी तुमको लग गया ना समझे मेरा भाई का नाम लाओगे मेरे घर में रहोगे आके मेरा भाई को क्यों बीच में गिरते हो ये चीज का नहीं बोलना मेरे भाई को बीच में क्यों गिरते हो तो मैंने बोलना मेरा भाई को नहीं हुआ किसी भी मेरे भाई को तुम उदाहरण के लिए लाओगे ताकि बात छोड़ ये सोच के तुम्हें काम करना चाहिए खाना दे चलना था तो समझे आज के बाद में बात मत करना समझे यही चीज सोच के करना चाहिए खाना दादी जब कितने बात करना है नहीं तुमको बाहर या ना बात करना था तो वही तो नहीं किसी लड़की का किसी लड़की को एक ना शादी कर दो कि लड़की का बाहर या समाज का किसी किसी का ठेका लेके मुखिया मूवी की तरह समझे मुखिया का बेटा मूवी के बीच में रखा मूवी के साथ आपका पैसा हम जाए ठीक है मूवी के बारे में मेरा बात मुखिया का है सब जगह ही उठा कर बच्चे बुद्धि जो है उससे बनते हैं आप वो बेटी से कुछ चीज बात नहीं करती है इसलिए वो बेटी का बात सुनता मोटी मोटी जो भी 5 किलो कुछ चीज लेकर दिखाने आती है So this is an extremely abusive conversation from the woman's side, who got married to this man just about a year ago.
And कहाँ से? This is a case from Bihar. Bihar. Yeah. Okay, so this is not a Delhi. This is No, no, not. no, no, no. ये Very, बिहार very से small place in Bihar. रूरल बिहार Yes, में लेडी absolutely. है जो इंस्टाग्राम पे है, रील्स बनाती है, Yes. सोशल मीडिया savvy. And the guy is not some really, really well-to-do guy. बहुत ही छोटी सी family है. Hand-to-mouth family है. And hardly 8,000 या 10,000 ये बंदा कमाता होगा. Now, the woman says that she will not stay with his family. And this is exactly what the conversation is about. She's saying कि तू bond भर के दे कि तू अपनी family के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा. And he says कि तुम अपने भाई को ऐसा बोल सकती हो क्या कि वो तुम्हारी family से कोई रिश्ता नहीं रखेगा. That's when she started completely abusing him. And it's a long, long audio. And this is just one part of it. There are audio that this family has where she's saying कि if you don't give me 20 lakhs, I'll make your life hell. 20 lakhs. Yes. 20 lakhs for a family like this is out of question. And now the only mistake that this man has committed is that he will not abandon his family at the behest or at the demand of his wife. And that's why she has left him. That's the only reason for breakdown of the marriage. And she's gone to her parents and now she's filed all kind of cases on him, accusing them of dowry, domestic violence. She's going to be asking him for maintenance. आज की डेट में आप देखेंगे तो 90% केसेस जो हैं दे आर फॉल्स. They are false. दे आर फॉल्स. Okay. उसमें जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं हस्बैंड और हस्बैंड के पूरे रिलेटिव्स के ऊपर दे आर टोटली फॉल्स. ओनली 10% केसेस ऐसे होते हैं जो केसेस में सच्चाई लिखी होती है, जो एग्जैक्टली वो एक्यूरेटली जो वाइफ के साथ हुआ होता है. नाउ देयर इज अ पैकेज. वुमन कैन फाइल अ केस. देयर इज अ पैकेज ऑफ केसेस व्हिच शी कैन फाइल. First, domestic violence. The day she got separated from the husband, she filed a domestic violence case on the husband and all the relatives. आप देखेंगे कोर्ट्स में रिलेटिव्स की लाइन लगी होती है. जजेस लाइन से पूछते हैं, ओके हु इज दिस पर्सन, ओके आप कौन है, ओके आप कौन है, अच्छा आप सिस्टर हैं, आप 3 सिस्टर्स हैं, आप सिस्टर के हस्बैंड्स हैं. Wow. So this is like happening in this You court. got married. It did not work out. And now you'll have to pay this person who was abusive to you, who was abusive to your family, and who made demands that you couldn't comply. And now you're going to be punished for literally just getting married. You got married to the wrong person. There's a wrong woman who walked into your life, and now you'll have to pay a price for it. So, and the law basically entertains it, and that's the problem. I think the law should be fair. It should look at uh, who is right and who is wrong rather than gender. And in this case also, I think पता नहीं कितने दिन लगेंगे इस family को निकलने के लिए. But she is a woman. But the sister of this man is also a woman. The mother of this man is also a woman. But they cannot do anything to her. While she can just destroy them. So, अगर यही audio या यही abuses एक आदमी अपनी वाइफ को हर्ल कर रहा होता, या यही एटीट्यूड एक आदमी का होता अपनी वाइफ के टुवर्ड्स, तो उसकी वाइफ के पास बहुत सारे कानून हैं उसको स्यू करने के लिए या उसको पनिश करने के लिए. बट reverse the card, nothing that this guy can do. So that's a problem. What is your reading on the Atul Subhash case? अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो और कोई आदमी हॉस्पिटल में मर जाता है तो एक बार मरेगा, लेकिन जब आपके अगेंस्ट कोई झूठा केस हो गया, आपको हर डेट पे कोर्ट में जाना है, तो आप हर डेट पे मरते हो. हु इज गोना एड्रेस दैट? हमारा जो प्रोसीजर है, समटाइम प्रोसीजर बिकम अ पनिशमेंट, एंड सेम थिंग हैपेंड इन दिस केस. दैट प्रोसीजर दैट सिस्टम बिकम अ पनिशमेंट फॉर हिम. आपके जो केसेस हैं जो 6 महीने साल में ख़त्म हो जाने चाहिए, वो आपके 10-10 15-15 साल चलते हैं. दैट इज़ अगेन हैरेसमेंट. Right. अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, आज उसको 3 साल की जेल हो सकती है, तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने में उस केस को चलाओ, ख़त्म करो. 3 साल की या जो उसका ड्यू है सोसाइटी को, लेट हिम पे हिज ड्यू. जाए अपना जेल जाए, फाइन दे, जो भी काम करना करे. रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द लाइफ. Right. 10 साल केस चल गया, 10 साल केस चलने के बाद अब 3 साल की जेल हो रही, तो 10 साल में जो हैरेसमेंट हुआ वो क्या पनिशमेंट नहीं थी? वो भी पनिशमेंट थी. Atul Subhash case is not a case of mental health going wrong. I personally feel so. He was an engineer.
a very, very rational, logical, fact-based mind. For people like that, most of the things are black and white. They Right. don't understand grays too much. When he entered into the system, legal system of India, he was disappointed, shocked, and completely gobsmacked कि ऐसा कैसे हो सकता है. और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है. और जब ही इस तरह की चीज उनके साथ हो जाती है, कोशिश करते हैं वो लोग फाइट करने की, कोशिश करते हैं अपने आप को प्रूव करने की, राइट. बहुत मेहनत भी करते हैं कि सिस्टम के साथ वो लड़े, बट कहीं ना कहीं सिस्टम उनको इतने ज्यादा थपेड़े देता है, इतना ज्यादा थपेड़े देता है, दैट दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग everything, Right. and they start questioning their life as well, that whether they want to live, like this, a miserable life, or they just want to end it all. Atul Subhash ke case mein, I think it was a very, very calculated action or act that he did, and his action was, I think, moved by his intent to protect his family. These cases can go on forever, Right. okay? And then your family suffers. It's not just the man who's facing these cases, it's your mother, it's your father, it's your brother. Everybody is implicated. They were implicated in this case as well. So it's like, do you want to become the factor for misery of your entire family, or do you want to just end it all? So, in I'm not saying कि इन केसेस का कोई सोल्यूशन नहीं है, या इन केसेस से लड़ा नहीं जा सकता, या suicide ही एक ऑप्शन है. I'm not saying that. But in Atul Subhash's case, he analyzed every possibility. Like in his suicide video, he says, मेरे पास 3 ऑप्शन है. या तो मैं इसी तरह से इन लोगों को चलता रहेगा, इसी तरह मैं इन लोगों को फीड करता रहूं, या फिर मैं अपने आप को खत्म कर दूं, एंड आई जस्ट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है. सो एंड इन हिज लास्ट सुसाइड वीडियो में वो लास्ट में ये भी बोलता है कि आई एम फीडिंग माई ओन एनिमी for destruction of me and my family, so I will stop that. So he writes, this ATM is closed forever. And something that a lot of people have not spoken about, particularly in Atul's case, which is very, very problematic and important to be discussed, is how we are killing men by separating them from their own children, Right. from their own blood. There are thousands and lakhs of men who are literally walking dead right now because they cannot even see the face of their kids. I cannot even think of what happens to men who are not able to see their own kids. And I don't know how a woman who is supposed to be this feminine energy, loving, caring, goes to this extent or becomes this horrible human being to separate a child from a father. Right. अतुल के केस में तो ऑब्वियसली उन्होंने 3 साल से अपने बच्चे को देखा ही नहीं था. ही सेड कि मुझे शक्ल भी याद नहीं है उसकी. तो समझ लिया कि आपकी शादी नहीं चल रही, समझ लिया कि आपके पति आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे, समझ लिया शायद हो सकता है कि उन्होंने आपको अब्यूज भी किया हो, वायलेट भी किया हो, बट क्या वो उन सब चीजों की वजह से बुरे बाप भी बन गए? एनी ऑफ दीज केसेस ये मेंटल हेल्थ बच्चे पे कितना अफेक्ट करता है, वी आर नॉट इवन टेकिंग दैट इनटू अकाउंट. आई थिंक यू थिंक अबाउट इट when you become adults. आजकल बात होती है of abuse etc, and a lot of it comes from the families you've come from. Oh, yes, It's very important for any child Yeah. to have Divya, the- a loving family, or forget loving, but to have that male and female figure in his life, and for them. And the problem is जैसे ये होता है, you'll have these toxic conversation जो बच्चे के साथ होने लग जाती हैं, that ultimately will poison him or her. Now I have a similar case where the husband was struggling for the kid. He said, "Sir, wife चली गई कोई बात नहीं, मुझे बस मेरा बच्चा दिलवा दो. मैं अपने बच्चे के साथ अपनी पूरी जिंदगी रह लूंगा." And sometimes it got emotional for us as well, because when that person came in a court and he was literally crying before the court,
दैट सर मैं अपने बच्चे से 6 महीने से नहीं मिला हूँ, प्लीज मेरे को मेरे बच्चे से मिलवा दो. ही वॉज लिटरली क्राइंग इन द कोर्ट रूम. एंड जैसे वाई आर यू क्राइंग, सेड सर वो मिलने नहीं देती है. वो बहुत बार गया उनके घर पे बट अलाउ नहीं किया मिलने के लिए, उसको भगा दिया कि नहीं तो आप कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ, या आप ऐसे बच्चे से नहीं मिल सकते. सो वी फाइल्ड अ चाइल्ड कस्टडी केस इन दैट केस, एंड ऑन अ वेरी फर्स्ट डेट वी गॉट द विजिटेशन राइट. एंड व्हेन ही गॉट दैट विजिटेशन राइट, ही लिटरली उन्होंने उसको लेमिनेट कराया उस ऑर्डर को, एंड ही सेड थैंक यू सो मच सर, दिस इज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर मी, यू हैव गिवन मी. And he, that guy, when went to meet his child, he clicked the photograph and said it to me, and thank you so much sir for this. एक मैं डाउरी डेथ्स की बात करना चाहूँगी कि एक माइंडसेट है कि डाउरी डेथ्स तो रूरल इंडिया में होती हैं, अब उनकी रियलिटी नहीं है. कितनी प्रेवलेंट या वो एक एरा था जब डाउरी डेथ्स होती थी, आज के दिन नहीं होती हैं. आपके एक्सपीरियंस में जो आप देखते हैं, कितनी रियल है डाउरी डेथ्स और डाउरी हैरेसमेंट अर्बन और रूरल में? क्या वो अलग है, या क्या आप भी ऐसे केसेस आज भी देखते हैं? देखिए, डाउरी डेथ दो टाइप की है. डाउरी डेथ में पहली डेथ होती थी जब बहू को सच में ही ससुराल वाले जलाकर मार देते थे. जी. वो रेशियो तो खत्म हो चुका है लगभग, जला के मारने वाला ऑप्शन खत्म हो गया. अब लगभग उतना केसेस नहीं है. अब है डाउरी की डिमांड से लगातार जब लड़कियां हैरेस हो जाती हैं और वो सुसाइड कर लेती हैं, कोई जहर पी लेती है, कोई बिल्डिंग से छलांग मार देती है, वो केसेस अभी भी हैं. हालांकि हायर सोसाइटी में उतना नहीं है, क्योंकि तुरंत अगर इस तरह का माहौल होता है तो पेरेंट्स होते हैं सपोर्ट करने के लिए. उनके लिए जो माइंड सेट है उनका इतना स्ट्रांग होता है कि वो जल्दी से सुसाइड नहीं करती. ये आती है बात लोअर मिडिल क्लासेस में. मिडिल क्लासेस की लड़कियां भी नहीं कर रही हैं. लोअर मिडिल में या अपर मिडिल में भी हम कह सकते हैं, वहां पे भी कुछ कुछ लेवल पे चीजें Data मिलती हैं. is incorrect. Reason being, the basis on which this data is being created is different aspect altogether. अगर कोई भी शादीशुदा लेडी 7 साल के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है अंडर अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस, सुसाइड करती है या कोई पॉइजन का है या कोई और रीज़न हो सकता है, अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस, दिस इज़ ऑटोमेटिकली ए केस ऑफ डाउरी डेथ. स्पेशली व्हेन somebody dies तो उसके फैमिली वाले आते हैं, आके पुलिस में कंप्लेंट डालते हैं कि आवर डॉटर वाज बीइंग हैरेस्ड. जहाँ तक रूरल और अर्बन का डिफरेंस है, पहली बात तो ये है कि रूरल एरियाज़ में स्टिल बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, मोस्ट ऑफ द लेडीज़ दे डोंट एक्चुअली गो टू द पुलिस. घर में पिटती रहती हैं, किस दिन मर जाती हैं, बहुत बार रिपोर्टिंग नहीं होती है. लेकिन जब रिपोर्टिंग होती है तो देर आर स्पेसिफिक सेक्शंस जिसके अंदर वो केस रिपोर्ट होता है. हम लोगों के पास जो सिचुएशन आती है, हमारे पास आती है जैसे हम लोगों के पास, तो वो दैट कम फ्रॉम्स द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. तो वहाँ से जो हमारा डाटाबेस है उसमें आपको मिल जाएगा कि सेक्शन 304B यानी डाउरी डेथ के कितने केस रजिस्टर हुए हैं पिछले साल में. एंड दैट्स वाई वी क्रिएट अ लॉट ऑफ हाइप रिलेटेड टू दैट. लेकिन कितने हस्बैंड्स हैं जिनकी अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में डेथ हो जाती है, जो सुसाइड कर लेते हैं. देर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ विच सेज कि भाई वाइफ के हेरेसमेंट की वजह से इस आदमी ने सुसाइड कर लिया तो देर शुड बी एन एक्शन. यहाँ प्रॉब्लम आती है. डाउरी डेथ, obviously the real culprit in those kind of situation, those people should be punished, but the law should not be used as a tool to get revenge. Case in my documentary, India's Sons, it's a story of it's real life cases told in person by men who have been falsely accused of rape. They fought their case and they won their case. Arvind is a case where he also killed himself, and he fought for 10 years with the system and with the woman who was torturing him and harassing him. उनके सुसाइड में नोट में एक लाइन है जो अभी मुझे स्ट्राइक करी जब हम ये बात कर रहे थे. उन्होंने लिखा है कि कानून इंडिया में सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष तो पैदा होते ही अपराधी बन जाता है. So if men are being forced to think like that, then we have kind of started reverse discrimination. Right. We wanted to, do away with all the discrimination that happens with girls, but somewhere we have started discriminating in reverse. There are a lot of young boys that come to me with varied kind of, grievances. क्लास में टीचर जो है वो अगर लड़की कुछ मेरे को पीट भी दे या गाली भी दे दे या कुछ गलत भी कर दे तो उसको कुछ नहीं बोलती है, बट अगर लड़के ने कुछ कर दिया तो उसको इमीडिएट पनिशमेंट मिल जाती है. Right. ओके,
There are these young boys for whom we are fighting a case in the Supreme Court as well. I don't want to name the organization, but there's a medical institute, one of the biggest medical institute in India, that has now said that 80% of their intake of nurses would be girls and not boys. And these boys have now gone to the Supreme Court asking that why, you could do 50-50, but why 80-20? 80-20. You are, then you should perhaps close down these institutes that are teaching us, because if you're not going to provide us job or employment, then what's the point of even studying? There are a lot of corporate organizations which are now doing 100% recruitment of only girls. Not a problem with it. We need to bring girls up, but then somewhere it's going to put this in the mind of boys that, now it's our gender which is a problem. In fact, there was a beautiful quote अभी Elon Musk का एक वो था that some of the most dangerous sectors actually have men working Oh, yes. in them, right? So accept that, own it, and I think celebrate them. Yeah. कि these are dangerous places, you're working on them, Yes. kudos to you. And these are spaces where women are working, and kudos to them. Versus doing this लड़ाई झगड़ा Absolutely. in both sides कि यहाँ पे लड़कियों को काम मिलना चाहिए और यहाँ पे लड़कों को नहीं मिल रहा है. Absolutely. Where I mean, when you're talking about equality, let's talk about equality only. Atul ke case ke baad, I've been on just so many debates, and the standard argument of feminists or women's right activists is we must not change the laws, we must not have gender neutral laws, we must not do anything to, they give a take token, sympathy to Atul and what happened to him. But do they want anything to change? No, they do not want. How is that equality? How are you okay with, even they say the numbers are more of women suffering? Yes, nobody is denying that. Nobody is even questioning that. Nobody is saying that remove all the laws. All that we are saying is punish these women who are misusing the laws. or make it fair or kuch Yeah, make it recourse. fair, make it equal. When you're talking about equality, then actually implement, or at least in your mind, understand what equality is. You say you want to protect women, but you're okay with men being discriminated like that or men being tortured and harassed like that. How is that equality? You can't let go one person just because of gender. Right. Just give you an example. Section 69 of the Bharatiya Nyaya Samhita. It only punishes male if he get into a physical relationship with a female on the false promise of marriage Okay. or so, by deceitful means. 10 साल की जेल है उसके ऊपर. in your cases that you've seen, and the narrative that has come out is, we are an unequal society, women still are subjected to dowry deaths or honor killing, and ये villages में या छोटे towns में ज़्यादा issues हैं, लेकिन वहाँ पे equal राइट्स पहुँचे नहीं हैं, उन महिलाओं को पता नहीं कि वो अपने राइट्स कैसे यूज़ करें. और एक ये अर्बन नैरेटिव बन गया है जहाँ women in urban areas or the more accomplished women are misusing these laws. क्या ये एक urban और rural narrative है, या क्या आप अपने एक्सपीरियंस में इस टाइप का अब्यूज़ या मिसयूज़ पूरे इंडिया में देखते हैं केसेस में? 2023 में हम लोगों ने एक रिसर्च रिलीज करी. हम लोगों ने लगभग 850 केसेस डॉक्यूमेंट करे, जिसमें से 350 केसेस ऐसे थे जहाँ पे महिला ने अपने लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड को मर्डर कर दिया. Almost one murder like that every single day. Majority of these cases are from villages. So if you think that women in villages are not as smart or cunning or sharp as women in urban areas, then you're absolutely wrong. Numbers can be argued whether or discussed कि कहाँ पे ज़्यादा होता है, but to say कि ये सिर्फ urban phenomena है या metropolis का phenomena है, that's absolutely incorrect. The lawmakers, our home minister really needs to institute a committee right now to analyze कि क्या पैटर्न्स हैं, क्या लूप होल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे ये चीज़ें कम हो रही हैं, या एक्चुअली क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए अगर आपने लॉज बनाए हैं तो आप एक बार मुड़ के ये तो देख लो कि वो एफिकेशियस कितने हैं.
या इफेक्टिव कितने हैं, और अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो उसके रीजंस क्या हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर इफेक्टिव है, वहाँ पे 65 to 70% कन्विक्शन रेट है, इसका मतलब वहाँ पे जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिल रही है। तो वहाँ पे क्यों मिल रही है, और यहाँ पे दिल्ली वगैरह जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कन्विक्शन रेट इतना ज़्यादा कम क्यों है, क्या फर्जी केसेस बहुत ज़्यादा है। दे नीड टू सिट डाउन एंड एनालाइज एंड अंडरस्टैंड वेदर द लॉज दैट हैव बीन special provisions which have been made to protect women, are they serving their purpose or not. 2012 में, आज से 12 साल पहले, निर्भया happened on 16th of December. We are in December 2024 and now we are talking about men's rights. Recently there was a case in Supreme Court where this woman was married to this man. Both of them had, this was their second marriage. She stayed with this man for just 4 months and she filed not just 498 case on him, she filed a rape case on his cousins, false rape case on his cousins. She filed a molestation case on his father. She filed an unnatural case, this unnatural sex case on him. So this woman had basically filed every provision possible and including all the male members of this man's family. The Supreme Court gave the guy a divorce, saying your marriage has broken down irretrievably, so we're going to give you a divorce. They asked the man to give 12 crores to this woman. She was asking for 500 crores, Wow. and the Supreme Court asked him to pay her 12 crores. See, problem is not that he needs to pay her. That is, I'm not questioning the Supreme Court on that, but I'm definitely questioning Supreme Court on the fact that they are privy and they are witness to the fact that this woman has misused not just 498 but also the provision of rape, which is such a heinous crime. And you are letting this woman go and gifting her with 12 crores. What example are you setting in society? Can they ever reward a rapist knowingly? I don't think so they can. Then why this leeway for women? And if she is, and there was a rape case, and if that man was convicted, तो या तो उसके लिए convict करो, या अगर वो convict नहीं कर रही हो तो आप No, false फर्जी case के कर लिए, रहे हैं. right? They're just saying all the cases that she had filed were farji. She had occupied the house of her father-in-law, who was an old man. And वो सब ऑब्जर्वेशन जजमेंट में है, बट एंड में वो कह रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि एलिमनी इज नॉट क्राइटेरियन टू इक्वलाइज द वेल्थ ऑफ द मैन. लेकिन उसको बोला है कि 12 करोड़ रुपए. तो अगर आप ऐसे केसेस में कोई भी एक प्रेसिडेंट सेट नहीं करोगे तो लोग तो ऑब्वियसली तो मिसयूज बाहर करेंगे देशों ना. में एक प्री नेटल एग्रीमेंट नाम का कंसेप्ट है, जैसे मुस्लिम मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह आपका एलिमनी अमाउंट पहले डिसाइड हो जाता है. वो डिसाइड करो ना. तब क्यों घबराता है इंसान, वो सोच रहा है कि भाई अगर नहीं निभाऊंगा तो इतना पैसा देना पड़ेगा. तो सही है भाई, दो ना. कोई भी अगर निकलता है बैकअप करता है रिश्ते से, उसको देना पड़ेगा. ये एग्रीमेंट हम कर नहीं रहे. शादी जब करने जाते हैं ना लड़की वाले लड़के के घर में, तो लड़के का घर बार देखा जाता है. जी. कितना बड़ा घर है, ससुर क्या कमा रहा है, माँ बाप क्या कमा रहे हैं. लड़का कुछ भी नहीं कर रहा है. अब लड़का लड़की की बनी नहीं. शादी के टाइम बाद में जब केस फाइल होता है तो केवल उस लड़के की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चेक की जाती है, जिसमें कुछ नहीं मिलता. करोड़पति है लड़का, घर कोठियां खड़ी हैं बाप दादाओं के नाम पर. फिर वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के नाम पे कुछ लड़की को मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो केस में कुछ नहीं मिलेगा. आखिर में वो लड़की सेटलमेंट करती है. तो हुए ना परेशान. तो लड़कियां अभी एग्रीव्ड ही हैं. But ये prenuptial agreement is not allowed by law, Indian law right now, या is it allowed? नहीं, धारा 370 हो सकती है, तो ये भी हो सकता है. आप आज के केस में जाओ, मर्डर के केसेस कहाँ हो रहे हैं इतने, लेकिन दहेज और डाइवोर्स का केस हर घर में मिलेगा आपको, हर घर में. हिंदू मैरिज एक्ट कितना पुराना है, पहले डिसाइड करो ना. जब मुस्लिम मैरिज में ही मेहर का जो अमाउंट है पहले डिसाइड हो जाता जी. है. ऐसे ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो. हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर दो. एक कानूनी तो लेके आना. आज कानून आएगा, कल पास कर दो कि भाई इतना पैसा देना होगा. कोई मेंटेनेंस का केस नहीं चलेगा. बने तो ठीक है. यूएस के अंदर नो फॉल्ट स्टेट बोलते हैं, 50 स्टेट्स हैं यूएस में. यानी कि वहाँ पे किसी भी पार्टी को कोई ग्राउंड लेने की जरूरत नहीं है. आपको सिंपल एक एप्लीकेशन लगानी है, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, हमारी शादी नहीं चल पा रही है, हमें तलाक लेना है. कोई केस नहीं चलता, 2 से 3 महीने में ट्रायल खत्म. कोई पूछेगा भी नहीं ग्राउंड क्या है, नो फॉल्ट इसलिए बोला गया. जितना अमाउंट है दोनों में 50-50 डिवाइड, कहानी खत्म. Beautiful. 3 महीने में केस खत्म है.
जितने भी काफ़ी मेरे एनआरआई क्लाइंट्स हैं वो वहीं जाके केस फाइल करें। इवन डाइवोर्स टूरिज्म हो चुका है वो तो। फॉल्स केसेस कितने होते हैं? फॉल्स एलिगेशंस आप कितने देखते हैं जो लड़की करती है अगेंस्ट मेन, या उसका क्या इम्पैक्ट होता देखिए है? जो फॉल्स केसेस होते हैं ना, वो फॉल्स केसेस कभी भी कोई लड़की जानबूझ के नहीं करती। जब हमारे सिस्टम में सीधा रास्ता नहीं है, अब मान लीजिए एक लड़की है, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, वो अपने ऑफिस में काम कर रही है काफ़ी जी टाइम से, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, किसी वजह से भी उसका जो भी है वो ना सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस चल रहा है। अगर वो चीज़ें ग्रोथ में यूज़ हो रही हैं तो ठीक है। अब बॉस ने उसकी प्रमोशन नहीं दी तो वो एलिगेशन लगा के करेगी उसको वापस सेटलमेंट। सेम वाइफ का है, शादी में खर्चा हो गया करोड़ों, ब्लैक में सारा पैसा हो गया, बैंकेट में शादी कर दी, कोर्ट तो ये बोलता है कोर्ट मैरिज करो, 500 रुपया खर्चा है, पर हमें तो शो ऑफ करना है, हम भी करोड़ों रुपए लगाएंगे। अब 10 दिन बाद घर नहीं बसा तो कोर्ट में जाएंगे, जी मेरा शादी का खर्चा वापस दिलाओ। कोर्ट बोलता है हम रिकवरी कोर्ट नहीं है, हम लड़की को मेंटेनेंस दिला सकते हैं। भाई मेरा 10 करोड़ शादी का कैसे निकालूं फिर मैं। अब आती है फिर झूठे केस, ससुर पे लगाओ जी 376, पति को उलझाओ, ननदों को जिनकी शादियां हो चुकी हैं जो जी बाहर सेट है उनको बुलाओ, लुकआउट सर्कुलर इशू कराओ, मतलब टॉर्चर कर दो कि कुछ ना कुछ तो मिले। जी तो ये सब जो फॉल्स केसेस है मजबूरी है, कोई जान के लगाना नहीं चाहता, सबको अपना रिकवरी अमाउंट चाहिए, जी वो दे दो आप ढंग से, वो मिल जाएगा किसी को। कोई वकीलों के चक्करों में कोर्टों में 10 साल नहीं लगाना चाहता कि हमें कोई शौक है झूठा केस डालने का। गलत केस मजबूरी है सिस्टम की, अगर सिस्टम सीधे तरीके से नहीं दिला पाता तो लोग गलत तरीके का यूज करते हैं। अब उसको साबित करने में लगा दो कई साल कि आप ठीक किया या गलत किया आपने। कोई लड़की परेशान होकर केस डालती है तो वो लड़की अकेली नहीं डालती कभी भी, उसकी पूरी फैमिली आती है। जब हमारे पास आते हैं लड़की कभी अकेली नहीं आएगी, उसके फादर मदर, 2 भाई, उनकी भाभियाँ, पूरा परिवार आएगा कि सर ये कहानी है, अब हमें नहीं बसेगी हमारी आपस में, हम नहीं रहना चाहते। तो क्या सॉरी सॉल्यूशन है, उसको दोनों सॉल्यूशन बताए जाते हैं। भाई सीधा रास्ता ये है, ईमानदारी से लड़ो, सच्चाई बताओ, केस 3-4 साल में आ जाएगा आपका, तो जी मेरी लड़की की उम्र निकल जाएगी। दूसरा रास्ता है जी ये स्टोरी डालो, जो भी है, जो भी एक वकील अपनी सलाह दे सकता है वो अपनी सलाह देता है कि जी इस तरह से आप चीज़ें को मैनिपुलेट करोगे तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आता है। तो इसलिए ये एक ट्रेंड बन गया, हर वकील इसी को यूज़ कर रहा है। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर से कोई मेडिसिन करोगे कि जी मैं अल्कोहलिक हूँ, तो डॉक्टर भी बोलेगा भाई अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी ना, तो जी डॉक्टर तो जी सलाह देगा ही। जी डॉक्टर का काम है सलाह देना, तो सलाह अगर मानते हो तो रिजल्ट आता है। ये ऐसा ही है जुडिशरी का सिस्टम, जो सलाहें दी जाती हैं उसी पे इंसान परेशान होके ही देता है। कोर्ट से तो रिजल्ट मिलने में बहुत टाइम लगता है, जब इंसान खुद परेशान होता है वो खुद ही 100 में से मान के चलो 80% केसेस म्यूचुअल डाइवोर्स में ही सेटल होते हैं, क्योंकि वो है। एक केस का एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरा क्लाइंट में हस्बैंड की तरफ से था, हस्बैंड वाज अर्निंग अराउंड 1.5 लैक्स, वाइफ एक हाउस वाइफ थी। अब वाइफ ने मतलब आपस में अनबन हुआ, 498 का केस डाला। हस्बैंड बोला कि भाई मैं अब डाइवोर्स डालूंगा सोलंकी जी, चाहे कुछ हो जाए, आप कितनी भी फीस लो, मैं वाइफ को नहीं दूंगा 1 रुपया भी। अब हमारा काम तो यही होता है, देखिए हम बीइंग एडवोकेट हमारा काम है हमारे क्लाइंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, चाहे जी वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, जी उसके लिए फाइट करना। अब वाइफ ने एक केस फाइल कर दिया डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसमें पेरेंट्स का नाम डाल दिया, पेरेंट्स को सम्मन हो गया। अब हस्बैंड इतना डर गया, बोला नहीं सोलंकी जी मैं अपने पेरेंट्स को कोर्ट में नहीं आने दूंगा चाहे कितना भी करना पड़े। 80 लैक्स में सेटल हो गया 2 डेट्स में केस, 80 80 लैक्स। lakhs हाँ, और वो भी उसको लोन लेना पड़ा। बोला सर मैं लोन ले लूंगा चुका दूंगा, बस मैं नहीं चाहता इस एज में मेरे माँ बाप कोर्ट में धक्के खाएं। अब वो 1.5 लाख रुपए उसकी अर्निंग थी, अगर कल को मेंटेनेंस भी डिसाइड होती तो मेंटेनेंस जाती 40-50 हज़ार रुपए। जी जी अब लड़की ने एक ही केस डाला, 80 लैक्स मिल गए उसको, वो भी कोई जबरदस्ती नहीं मिले, लड़की ने अपनी मर्जी से दिए, क्योंकि लड़का खुद नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स का हैरेसमेंट हो। हालांकि हैरेसमेंट होना नहीं था, बट उसको निकलना था, उसको निकलना था कि भाई ठीक है मुझे भी जल्दी है, तो 80 लैक्स लड़की लेके गई। अब मेरे हिसाब से भाई ठीक है, उसके डाइवोर्स है, वो दूसरी शादी उसकी होगी नहीं होगी, वो वेल सेटल लाइफ में है या नहीं है। जो लड़कियां वर्किंग होती हैं, अधिकतर जितने मेरे पास केसेस है जिसमें लड़कियां वर्किंग हैं और हस्बैंड भी वर्किंग है, वो इजीली म्यूचुअल हो जाते हैं, नो एलिमनी केसेस चलते ही वहां पर हैं जहां वाइफ अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, या एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, अब हस्बैंड जी को डाइवोर्स चाहिए विदाउट एनी एलिमनी, तो वाइफ कहाँ जाएगी उन 2 बच्चों को लेके। तब ये केसेस फाइल किए जाते हैं 498 के, डिफेमेशन के, रेप के, कि भाई मुझे तो लड़ना है, मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड़ना है, जी कहीं से भी लूंगी मैं जी लाऊंगी। जी जी जो इंसान देश की तरक्की के बारे में बात करेगा वो रेदर देन गूगल पे यूट्यूब पे ये सर्च कर रहा है कि डाइवोर्स में मेंटेनेंस बचाने का फॉर्मूला क्या है, जी तो उसका अपना टाइम किस में जा रहा है। in most cases men would just be like, and you know would just be petrified कि अगर मैं कुछ जाके बोलूँगा
तो मेरे को ही जेल में डालेंगे against some of this. So what gives the man a courage to fend for himself and stand up for himself? अगर आपके साथ इस तरह का कोई एक्सटॉर्शन हो रहा है, you must definitely approach the police and approach highest police officers if possible. Um, Again, different टर्म्स होते हैं पुलिस के. अगर आपसे कोई पुलिस वाला ही एक्सटॉर्ट कर रहा है किसी छोटे केस में फंसाने की धमकी देके या किसी छोटे केस में फंसा के, you can go to anti-corruption bureau. Men will have to fight back. To bring a change, men will definitely have to fight back. अगर आप डर जाओगे, अगर आप ये सोचोगे कि समाज में बदनामी हो जाएगी या बेइज्जती हो जाएगी, तो कुछ नहीं होगा. आपको लड़ना पड़ेगा. जिस तरह से महिलाओं ने आगे आके स्ट्रेंथ दिखा के अपने लिए लड़ाई लड़ी है, अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी है, कानूनों की डिमांड करी है और सड़कों पे भी उतरी हैं अपने अधिकारों के लिए, उसी तरह मुझे लगता है पुरुषों को भी अपने अधिकारों के लिए जो है आगे आना पड़ेगा और उनको तभी कुछ ना कुछ रिलीफ मिल पाएगा. एज फार एज मेंस राइट्स आर कंसर्न्ड, या तो लीगली तो अब इतना ज़्यादा कुछ है नहीं तो मैं क्या बताऊं. बट हाँ, ये है कि अगर आप एक खराब शादी में हैं तो आपके पास रिकॉर्ड्स ये रहता है कि आप डिवोर्स फाइल कर सकते हो. लेकिन अगर आप डिवोर्स फाइल करते हो तो आपके ऊपर बहुत सारे फॉल्स केसेस आ सकते हैं. तो बट एक जो चीज़ है वो, जैसा मैंने बोला, कि अगर आपको एक्सटॉर्ट कर रहा है कोई, तो आप पुलिस में कंप्लेंट ज़रूर फाइल कीजिए. वो तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो. आपको सिस्टम के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा. देखिए, आप लेट्स टेक एन एग्जांपल. पहले क्या होता था कि जो दहेज के केसेस थे शुरू में बहुत कम रजिस्टर होते थे, क्योंकि रूरल एरियाज़ में है, वहाँ कुछ हो रहा है, कहते हैं ये जो घर की बात है घर में रह जाएगी. कोई लेडी जाती थी पुलिस में रजिस्टर करवाने के लिए एफ, कहते घर की बात है घर में सॉर्ट आउट करो. इन दी अर्बन एरियाज़ ऑल्सो दिस वॉज द सेम इशू. तो एफ कम होती थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एफ बढ़ने लग गई, काफ़ी ज़्यादा होने लगी. नाउ अ डेज दिस इज़ अ मैनेस. You know, this idea of shame, Yeah. right? This idea जो हमने सोसाइटी में क्रिएट किया हुआ है कि men are strong और सारी जिम्मेदारी उनकी है और उनकी एक रेपुटेशन है. And I think a lot of times when someone is faced by something like this, कोई woman या कोई महिला या कोई person is maybe pressuring him, तो एक sense of shame हो जाता है कि मेरे साथ मैं ही शायद अकेला हूँ जिसके साथ ये हो रहा है. एंड दे आर नॉट ऑल्सो विलिंग टू टॉक अबाउट इट. मतलब किसी से बात करने भी मे बी हिचक होती है कि ये एक एक मर्द एक आदमी ऐसे कैसे बात कर सकता है, और हाउ कैन आई फील लाइक दिस. सो this sense of shame, I feel, is something we need to deal with as a society and normalize it, that anyone can be tortured and anyone can be traumatized, anyone can be a victim, and anyone can be a villain. ये कोई रोल प्री डिफाइंड नहीं आता है आपका. एब्सोल्युटली. मैं बहुत बार ये बात बोलती हूँ कि हम लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए हैं कि हम महिलाओं को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए इनकरेज करें और ये बोले कि आपके साथ अगर कुछ भी अब्यूज़ हो रहा है, कुछ भी वायलेंस हो रही है, तो आप चुप ना बैठें, आप सामने आएँ, आप उस चीज़ को प्रोटेस्ट करें और उस चीज़ को मन ही मन या उसके बारे में साइलेंट ना रहें. और ये प्रोसेस को चलते हुए अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब. लेकिन पुरुषों के लिए मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कमी है उस इनकरेजमेंट की या उनको समझाने की कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप भी आगे आ सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं. और बहुत बार मैंने देखा है कि अगर वो आगे आके अगर अपनी बात करते भी हैं तो सोसाइटी कहीं ना कहीं उनको कंडेम करती है. आप कितने भी सोशल मीडिया पे भी कमेंट्स देख लो. इनफैक्ट मैं तो मेंस राइट एक्टिविस्ट हूँ, मेरी ज़्यादातर फॉलोइंग जो है वो काफ़ी अवेयर है. तब भी हम लोग ऐसे कमेंट्स देखते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि पहले तो आदमी वॉर में जाते थे और अब आदमी जो है सुसाइड कर रहे हैं, क्या हो गया आदमियों को. Wow. तो people have such very entrenched stereotypes about men that they cannot just accept a man being a weakling. Right. And it's not even being about weak. Anybody can be abused.
तो काफ़ी जोकिंगली बहुत सारे लोग बोल देते हैं, बट ये काफ़ी सीरियस मुझे लगता है कि स्टेटमेंट है कि अगर वो मार खाए तो भी वो गलत है, उसको उसकी मैनहुड पे क्वेश्चन है, और अगर वो मारे तो भी वो गलत है और उसकी मैनहुड पे क्वेश्चन है। तो बेचारा करे तो मतलब क्या करे। क्या करें? तो हम Are लोग there any platforms, Deepika ji, where men can go talk about their issues? कोई ऐसे forums हैं जहाँ पे वो अपनी problems को रख सकते हैं? Are activists, or are we getting senior professionals, judges, lawyers coming together to maybe talk about it? And like I said, it's not about it's not about changing the law. It's not about saying कि 498 नहीं होना चाहिए. But it's more about addressing कि क्यों इसमें कन्विक्शन रेट इतना लो है, क्यों इतने फॉल्स केसेस आ रहे हैं, हम क्या एक प्रोटेक्शनिज्म मैकेनिज्म इसमें क्रिएट कर सकते हैं No, no, ताकि इसमें it's honestly, it's not even just about 498, Divya. And it's not even about just men. It's about women as well. आपने इतनी खिचड़ी मचा दी है कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक ही मैरिज के ब्रेकडाउन पे या एक ही कपल के बीच में आप पांच पांच जगह पे केसेस चला रहे हो। आप किसको सर्व कर रहे हो? जी एक 498 है, 406 और ये जितने भी क्रिमिनल सेक्शंस लगाती हैं वहां पे चल रहा है। एक डोमेस्टिक वायलेंस भी चल रहा है, एक 125 भी चल रहा है, एक HMA भी चल रहा है, एक सेक्शन 9 भी चल रहा है, एक डिवोर्स भी चल रहा है। दो लोगों के बीच में आप कितनी लिटिगेशन कर सकते हो? राइट इंटरनेशनली ये सब बकवास नहीं होती है भाई। वहां पे एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही सारी की सारी प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगी। ये नहीं है कि एक 498 भी है, एक DV भी है, एक 125 भी है, कि ये भी है वो भी है। मतलब आप दो लोगों को कितना दौड़ाओगे? तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट men and 498, इट्स अबाउट द एंटायर सिस्टम। दे हैव कन्वोल्यूटेड द थिंग completely। एंड सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी राजेश शर्मा, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा एक एफर्ट किया था कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाए और इन सारे के सारे केसेस जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में चलते हैं उनको क्लब कर दिया जाए, एक कोर्ट में सुना जाए। फेमिनिस्ट चली गई सुप्रीम कोर्ट में कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, एंड दैट डिसीजन वाज रिवर्स्ड। तो चेंज भी अगर करना भी चाहे हमारे लॉ मेकर्स, तो उनको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है फेमिनिस्ट और वुमेन राइट so we need to create that public will overall That's it. and forums that can Yeah, be so talking about this. there are a lot of men's rights organizations right now. There are, of course, some organizations that are working dedicatedly on mental health and suicide prevention. Those numbers are available on Google. People can look it up. But men's rights की organizations बहुत सारी हैं आज के समय पे। सबसे बड़ी जो men's rights organization है और वो एक umbrella network है, it is called Save Indian Family, और उनकी हेल्पलाइन भी चलती है पैन इंडिया। द नंबर इज 8882498498, एंड आई थिंक दे रिसीव समथिंग लाइक 40-50,000 calls every year, Wow. and it's a volunteer driven initiative, and they organize meetings also, ground meetings also, and bring people together, so anybody can approach them. My organization is called Ekam Nyay Foundation. People can reach out to me as well. My email ID is contact@deepikabhardwaj@gmail.com, और हमारी वेबसाइट है ekamnyay.org. They can reach out to us through website as well. There is NCM India Council for Men Affairs, run by Keri Jha. There is Sahodar Trust run by Shoni Kapoor. There are a lot of organizations. So my advice is कि आप जिस भी शहर में हैं, there is भाई in Bhopal, there is अब तो बहुत सारी हो गई हैं. I जी. may not be even knowing Right, how many right. are. No, but this is great. I think Yeah, the idea is there is help there available. is help available. There Talk about definitely it, is help get available. out there. Yes, If you yes. are traumatized, if you are under stress, Yeah. you don't have to sit quietly. You don't have to, अगर आपके साथ नाइंसाफ हो रहा है, if you are in pain, so it's your sort of responsibility to reach out and get जो help. इंसान अपनी जान लेता है ना वो किसी भी तरीके से सही नहीं है।
चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। सिस्टम में सबके साथ खामियां हैं। हम दिल्ली के अंदर पोल्यूशन में रह रहे हैं, जी 400 AQI की चल रहा है, जिसमें इंसान की डेथ हो सकती है कभी भी। धीरे धीरे स्लो पॉइजन में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पावर दी हुई है, राइट टू लिव। उसके बारे में भी हम कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ धीरे धीरे मर रहे हैं ना। एक इंसान ने तुरंत सुसाइड कर लिया तो सारी बातें चल पड़ी स्टार्ट। कोई इंसान किसी प्रेशर को टैकल नहीं कर पाया। जिसने भी अपनी सुसाइड किया है उसके रीजन, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। क्या मल्टीपल केसेस देखो आप कोर्ट में, सब हस्बैंड के जो अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, क्या सभी सुसाइड कर रहे हैं? क्या कोई भी नहीं कर रहा। तो मैं तो यही मानूंगा कि जो भी सुसाइड करे, चाहे हस्बैंड है या वो औरत है, वो कमजोर है। जी अपनी लाइफ को खत्म करना सबसे गलत डिसीजन है, सबसे कमजोर डिसीजन है। आप फाइट करते, अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, नहीं मिला जस्टिस, ठीक है, क्या चला जाता? पैसा। अब तो जान ही चलेगी ना, पैसा ही चला जाता है। एक पैसे के ऊपर तो चल रहा था ना सारा ट्रायल। जी आप बेच देते सब कुछ, लास्ट ऑप्शन क्या था? सब बेच देते, आप साधु बन जाते, मॉन्क बन जाते, पर अपनी जिंदगी को तो बचा लेते। आपके माँ बाप ने पैदा इसलिए किया था आपको कि एक दिन आप अपनी वाइफ के केसों से परेशान होकर सुसाइड करो। अरे जितना कमाया था, इंसान बीमार होता है, बीमारी में भी तो सब कुछ बिक जाता है लोगों का। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो दुनिया का सब बिक जाता है। तो जी क्या सुसाइड कर लेते हैं वो लोग? सुसाइड जिंदगी में किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। लड़ो, नहीं जीत पाए तो ठीक है, फिर लड़ो, हार जाओ, हार मान लो, लेकिन मरना कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं तो अगेंस्ट हूँ इस चीज के। जिसने भी किया, मतलब मैं उस चीज को सिंपैथाइज नहीं करूंगा। Oh, absolutely. And बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनके जाने के बाद जो है उनकी फैमिली को कोई रिलीफ मिल जाएगा। तो आई जस्ट वांट टू टेल पीपल, स्पेशली मैन, कि अगर आप इन केसेस से जूझ रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को बख्श दिया जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्रिमिनल केसेस में अगर एक अक्यूज मर जाए, तो ऐसा नहीं है कि बाकी सारे जो अक्यूज है उनके खिलाफ जो ट्रायल चलना है वो नहीं चलेगा। तो अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर 498 लगाया और आपके पूरे परिवार को इम्प्लिकेट किया है, और अगर आपका सुसाइड हो जाता है, तो आपके परिवार को ट्रायल फिर भी फेस करना पड़ेगा। वाओ तो आप ये मत सोचिए कि आपके जाने से जो है मुसीबतें कट जाएंगी। मुसीबतें वैसी की वैसी आपके परिवार के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी और भी ज्यादा बर्डन हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास अब अपना बेटा या अपना भाई भी नहीं होगा। तो नेवर एवर थिंक ऑफ सुसाइड, प्लीज टेक हेल्प, मदद मांगिए आप। और कानून तो हमारे खराब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मर के कुछ फायदा नहीं होगा। जिंदा रह के आप लड़िए सिस्टम से, ताकि सिस्टम में बदलाव आए। हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। एक हस्बैंड ने सुसाइड किया, एक वाइफ ने 1 करोड़ एलिमनी डिमांड कर ली, उसी से हो गया कि वाइफ ने केवल यही काम है। अरे उस वाइफ ने अपने 30 साल उस हस्बैंड को दिए हैं, जो अपनी लाइफ में आज ग्रोथ करके करोड़ों कमा चुका है। तो क्या उसका इतना राइट भी नहीं बनता? अब वो लाइफ में अपनी 50 ईयर्स में या 40 ईयर्स की एज में कहाँ जाएगी? आदमी के पास तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, औरत के पास कहाँ है ऑप्शन? अब ये लाइन बोलूंगा तो भी मल्टीपल मैसेज आएंगे आपके पॉडकास्ट पे कि भाई देखो ये सब हस्बैंड के या मेल के अगेंस्ट बातें कर रहा है। देखो केसेस, जब हमारी बात है सच बोलने की, जो भी इंसान ये मैसेज या कमेंट हम मुझे भी करता है ना, मेरे चैनल पे भी करता है, तो उसका मैसेज उसके अंतरात्मा में उसको भी पता है कि आज भी औरतों की जो लाइफ है वो सरवाइव नहीं कर पा रही है। आपकी वाइफ पढ़ी लिखी गई, मेरी वाइफ पढ़ी लिखी हो चुकी हैं, लेकिन निकलो, इस जो पेरीमीटर है ना दिल्ली के सेंटर में लगा के, इसी के 20 किलोमीटर की रेंज में सब कुछ है, उससे ऊपर दूर जाना शुरू कर दोगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या सच में आज भी हमें कानून को चेंज करना है। नहीं, बल्कि और सख्ती से इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। मेरा तो मानना आज भी यही है। जिन लेडीज़ों के साथ शादी की शादी करने के बाद 4 से 5 दिन वो रहती हैं अपने घर पे, तुरंत हस्बैंड कहता है अब जाओ, लड़ाई हो गई है, जाओ, मुझे तलाक लेना है, जैसे मजाक है, जैसे सिस्टम, इंडियन सिस्टम के हिसाब से मजाक है। अब वो लड़की क्या करेगी? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट? अगर वो 6 8 10 साल बाद आप रिजल्ट दे रहे हैं, उसको आप जल्दी दे दें, तो बेटर है कि द पर्सन, जो दोनों ग्रीव पार्टीज हैं, उनको अपना सोल्यूशन लेके वो अपनी लाइफ में आगे चल सकता है। जो अभी व्हाट इज दिस रीजन कि इतना डिले क्यों हो जाता है हमारा जस्टिस सिस्टम? देखिए, जस्टिस सिस्टम डिले इसलिए होता है, कोई भी सिस्टम दो तरह से होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अब टेक्निकली जुडिशरी तो प्राइवेट है नहीं। वही जैसे टेंडर आप किसी का दे दो, किसी प्राइवेट सेक्टर को टेंडर दो, गवर्नमेंट सेक्टर को दो। अब तो चलो गवर्नमेंट मशीनरी काम कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर फिर भी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। जजेस का टाइम है 10 बजे से 5, 10 to 5। जजेस आ रहे हैं 11 o'clock, ठीक है, बीच में उठ रहे हैं, उनको मतलब नहीं, उनको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है।
10 से 5 जैसे आपकी थंब इम्प्रेशन से एंट्री है, छुट्टियां मिलेंगी, सैलरी मिल रही है। एक केस पे कितनी डिबेट करनी है कुछ नहीं पता। नए नए बच्चे जो रिक्रूट किए जाते हैं, एलएलबी कंप्लीट की, जुडिशरी कोचिंग ली, तुरंत जज बन गए, उनको बेसिक पता ही नहीं है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती उनको कि कैसे केसेस में डेट, एक जज है, 2 जजों का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जज के पास 100 केसेस लगे हैं, एक जज के पास भी 100 हैं। एक जज ने 12 बजे तक, 10 से 12 के बीच में अपने 100 के 100 केसेस को खत्म कर दिया, और एक 10 से शाम के 5 बजे तक 40 केस को भी हैंडल नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कैसे डिस्पोज करना है, अपने जी कोर्ट को चलाना कैसे है, जजों को नहीं पता। जी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इतने टाइम में, जो नए जजेस आ रहे हैं वो प्रॉपर केवल टाइम स्पेंड करके नहीं आ रहे कोर्ट्स में, या उनको फास्टर डिस्पोजल की जो ट्रेनिंग दी जा रही है मेरे हिसाब से वो नहीं दी जा रही कि नो एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आई थिंक ये सिस्टम का इशू है, ये लीगल या लॉ का इशू नहीं है। एंड अगर कोई फॉल्स केस कर रहा है या एलिगेशन कर रहा है तो शायद दे आर बीइंग फोर्स टू इट, कि उनको सीधे रास्ते से सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो दे आर गोइंग आफ्टर अनदर सोल्यूशन जो उनको क्विक इसमें से मिल जाएगा। आपके क्या रिकमेंडेशंस रहेंगे फॉर अ कपल? यू बीन अ डिवोर्स लॉयर, आपने बहुत रिलेशनशिप्स देखी हैं, जो ठीक गई हैं, जो गलत गई हैं। एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जीने के लिए फॉर द यूथ हु आर द व्यूअर्स ऑफ आवर चैनल, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी रिलेशनशिप में अडेप्ट करने चाहिए दैट वी कैन टेक देखिए फॉरवर्ड? मेरा मानना ये है, मैरिज इज द मेन कॉज ऑफ डाइवोर्स। ट्रू। हाँ बिल्कुल, अगर आप शादी ही नहीं करोगे तो डाइवोर्स होगा ही नहीं। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ये जितने केसेस हैं आप कह रहे हैं 498 का, डिफेमेशन, मेंटेनेंस के, एलिमनी, ये होगा ही नहीं। जी ठीक है, तो अगर शादी करनी है आपको, मैं तो ये बीइंग ए मेल ही बताऊंगा, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की है, वाइफ की नहीं है। 0% मानता हूं मैं। तो भाई यही है, या तो आप शादी का विचार करो ही मत, जी और अगर आप शादी का विचार करते हैं, मैरिज की रिगार्डिंग आप प्लानिंग करते हैं, तो आपको मेंटली इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। या देश की यूनिवर्सिटी जो भी यूजीसी वगैरह ऐसा कोई सर्कुलर इशू करें, ऐसा कोई चैप्टर इन्वॉल्व करें 11 12 की क्लासेस में, जहाँ पे बेसिक ये बताया जाए कि कैसे बीइंग ए हस्बैंड वाइफ रिलेशन को मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में यही स्टडी करनी है, चैप्टर यही पढ़ना है, रियल चैप्टर यही है कि आप एक दूसरे इंसान को कैसे अपनी लाइफ में 20 साल तक गुजार सकते हो उसके साथ रहकर। ब्यूटीफुल। तो मेरा मानना ये है कि कोई ऐसा करिकुलम जो भी है हमारा यूजीसी या जो भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि करिकुलम बनाते हैं, वो हमें वो राम महाराजा या जो भी बड़े बड़े भगवानों की चीज़ें तो बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, लेकिन हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन की कोई चैप्टर नहीं है हमारे सिस्टम में। उसी की ज़रूरत है, कानून चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हमें रूट्स पे काम करना है। ब्यूटीफुल। रिलेशंस को अंडरस्टैंड करें, एक करना दूसरे को समझें, एंड लुक एट रेजोल्यूशंस वर्सेस लुकिंग एट कॉन्फ्लिक्ट एंड बिल्कुल, आपको देखो निभाना पड़ेगा। शादी हमारे जो इंडियन सिस्टम में ना वो एक रिचुअल्स है। ठीक है, तो ये ट्रेन की पटड़ी की तरह है, साथ साथ चलते रहेंगे, मिलेंगे भी नहीं। तो बना के रखो, चीज़ें बड़ी स्मूथली चलती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन खुश रहोगे लाइफ में, लेकिन आप साथ रहोगे तो लंबे टाइम तक आप खुश रह पाओगे और जी पाओगे। मेरा तो यही मानना है। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सोलंकी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। एंड रियली आई लव द फैक्ट कि यू आर एबल टू ब्रिंग इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम स्पेशली द फैक्ट कि हाँ ठीक है, वुमेन की राइट्स आज भी बहुत ज़रूरी हैं। चेंज आया है लेकिन बहुत चेंज चाहिए, एंड दोनों साइड देखें लेकिन दोनों साथ मिल के बढ़ेंगे तभी आगे चल सकते हैं। बिल्कुल मैम। ग्रेट। What an intense podcast. Thank you so much for watching. अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी। ये काफ़ी इंटेंस था, काफ़ी फोकस की ज़रूरत थी इस कॉन्वर्सेशन को फॉलो करने के लिए। सो थैंक यू so much for being a part of this journey for me, for following this conversation. And I promise to you that I'll be bringing a lot more of these conversations, getting change makers, getting people who matter, getting different points of view, and bringing those together. So please keep supporting me on this journey and subscribe to this channel, and look forward to having and bringing lots more conversations to you very soon.